Hello friends, this is Ramanand Vishwakarma. Today we will discuss about the seasonal management of honeybee colony or maintaining of the honeybee population in beehives to get the maximum benefits throughout the years. Whatever the measures, operations or practices undertaken during the different season wise, that is called seasonal management of honeybee colony. साथियों, मधुमक्खी पालन में मधुमक्खी परिवारों को पूरे साल उनकी स्वस्थ पॉपुलेशन को बनाए रखना, जिससे हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित कर सकें और ये ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए यदि अगर हम मौसम के अनुसार उनका प्रबंधन करें तो इसी को हम मधुमक्खी परिवार का मौसमीय प्रबंधन या सीजनल मैनेजमेंट ऑफ हनीबी कॉलोनी कहते हैं। Likewise, agricultural sectors, this beekeeping industry is also divided in different seasons. Likewise, the spring season, summer season, monsoon season, autumn season and winter season. जिस तरह से हमारा कृषि क्षेत्र, वहाँ पे 3 प्रमुख मौसम होते हैं, जैसे खरीफ, रबी, जायद। ठीक उसी प्रकार से मधुमक्खी पालन में भी विभिन्न प्रकार के सीजन में इसको बांटा गया है, जैसे स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, मॉनसून सीजन, ऑटम सीजन और विंटर सीजन। So first of all, here we will discuss about the management during the spring season. The seasons is actually comes between the February month and will continue till the mid of April. इस तरह से अगर हम स्प्रिंग सीजन या बसंत ऋतु के प्रबंधन की बात करें तो यह सीजन फरवरी महीने से लेकर के अप्रैल के मध्य महीने तक आता है। During this season, as we know that in a spring season, bees are found to be more active because of abundance of the floral sources, particularly pollen and nectar sources. Due to regular collection of the pollen and nectar inside the hive, the population of bees is increased, and due to this bees are get agitated. अगर हम इस बसंत ऋतु की बात करें तो इस सीजन में इनका जो मुख्य फूड सोर्स है, खास करके पराग और पुष्प रस यानी पॉलन एंड नेक्टर, उसकी ज़्यादा मात्रा में उपलब्धता होने की वजह से इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है। तो इस मौसम में हमें खास करके जो प्रॉब्लम आती है वो स्वार्मिंग की आती है। Swarming, as you have already heard during our previous classes, swarming and absconding. But once again, I would like to repeat here
this swarming and absconding. Swarming means some of the bees go away from their colony, from their hives, in both the cases. But if it is happening in on season, means favorable seasons, means honey flow seasons, then it is called swarming. And if it is happening due to the some unfavorable conditions or off season, then it is called absconding. This is the basic difference between swarming and absconding. So during spring season, generally or commonly swarming happens. Why this swarming happens? Because of the due to the lack of the space, proper space means proper space for laying of the eggs by the queen bee. Due to the irregular extraction of the honey from the hives. These are the some important things. Due to this, if queen bee is not getting proper space for laying of their eggs regularly, so she would like to go away from this colony. And another things, sometimes we could not able to extract the honey, and we could not, if you are not making the cells empty for further storage or further storing of the pollen or nectar or for the purpose of the egg laying. Because of this, queen bee also swarmed along with the some of the worker bees. साथियों, हम बात कर रहे हैं स्प्रिंग सीजन की। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि स्प्रिंग सीजन में की खासियत क्या है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। यदि अगर हम इसकी प्रॉब्लम्स को जान सकें तो निश्चित रूप से हम उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, या उसके लिए जो ज़रूरत या आवश्यकता अनुसार जो प्रैक्टिसेस हैं वो हम फॉलो कर सकते हैं। तो स्प्रिंग सीजन में सबसे ज़्यादा स्वार्मिंग के चांसेस रहते हैं। स्वार्मिंग मीन्स आपको पिछली कक्षाओं में मैंने बताया है कि स्वार्मिंग और एब्सकॉन्डिंग ये दो शब्द होते हैं। इन दोनों शब्दों का मतलब होता है स्वार्मिंग और एब्सकॉन्डिंग में कि कुछ मधुमक्खियाँ घर छोड़ करके चली जाती हैं, फिर वो स्वतः वापस नहीं आती हैं। और यदि अगर ये घर छोड़कर जाने की प्रक्रिया अगर जब इनके लिए सारी कंडीशंस फेवरेबल हों, उस समय हो, या ऑन सीजन बोलते हैं, या जिस समय शहद भरपूर मात्रा में कॉलोनी में मिलता हो, अगर ये उस समय होता है तो उसको हम स्वार्मिंग कहते हैं। और यदि अगर घर छोड़े जाने की प्रवृत्ति अगर मधुमक्खियों में देखी जाए तो वो ऑफ सीजन में होती है, तो जिसको हम भोजना अभाव काल भी बोल सकते हैं। और भी बहुत सारे अनफेवरेबल कंडीशंस हो सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर का बढ़ जाना, उनके इंसेक्ट, पेस्ट और डिजीज़ के इंसिडेंस का बढ़ जाना, बारिश का होना इत्यादि अन्य कारण हैं। तो ऐसे में यदि अगर हम इनके वो सारी प्रैक्टिसेस, उनकी सारी समस्याओं के लिए अगर हम आगे बात करते हैं, खास करके स्प्रिंग सीज़न में रानी मधुमक्खी को अंडे देने के लिए जगह नहीं मिलती है सेल्स में। नियमित रूप से हम उसका इंस्पेक्शन नहीं करते हैं, देखभाल नहीं करते हैं, शहद का निष्कासन नहीं कर पाते हैं अगर समय से, उसकी वजह से मधुमक्खियां घर छोड़ देती हैं। या फिर कभी कभी उनमें उनकी संख्या बढ़ने के अनुसार
विभाजन करने की आवश्यकता होती है और हम नहीं समझ पाते हैं, उसकी वजह से भी घर छोड़ देती है। और स्प्रिंग सीजन पूरे साल का सबसे महत्वपूर्ण सीज़न होता है मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में, जिस सीज़न में ना केवल सिर्फ हम भरपूर मात्रा में शहद का उत्पादन कर सकते हैं, बल्कि इसके साथ ही साथ इसी मौसम में हम नई रानी मधुमक्खी के उत्पादन का भी कार्य कर सकते हैं। क्योंकि साल के अन्य महीनों में या अन्य मौसमों में यदि अगर हम नई रानी मधुमक्खी का उत्पादन तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसके गर्भधारण के लिए उसके शरीर में जो सीमेन बनते हैं, वो बनने के लिए जो अनुकूल वातावरण चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से स्प्रिंग सीजन सबसे बेस्ट माना जाता है मधुमक्खी पालन में ब्रीडिंग के पर्पज़ से। यहाँ पे हम कुछ प्रैक्टिसेस, कुछ ऑपरेशंस या क्रिया विधि के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसा रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ द कॉलोनीज फॉर ब्रूड रियरिंग एक्टिविटीज़, लेइंग क्वीन एंड द बी स्ट्रेन ड्यूरिंग अप्रैल मंथ। जैसा हमने आपको पहले बताया कि हमें स्प्रिंग सीज़न में हनी बी कॉलोनी को रेगुलरली विजिट करते रहना चाहिए, इंस्पेक्ट करते रहना चाहिए कि रेगुलर हमारे बक्से में, मधुमक्खी परिवार में ब्रूड्स यानी कि अंडा, लार्वा, प्यूपा इत्यादि का लगातार नियमित रूप से उत्पादन हो रहा है, पालन किया जा रहा है या नहीं। और वो तभी निर्भर करेगा यदि रानी मधुमक्खी नियमित रूप से अंडे दे रही, तो ये हमें रेगुलर अंतराल पर देखभाल करने की ज़रूरत है। दूसरा, सेकेंड प्रैक्टिस इज यूनाइटेड वीक कॉलोनीज एंड रिमूवल ऑफ ओल्ड और एग्जॉस्टेड क्वीन। दूसरा कि इस मौसम में कभी कभी कुछ एक कारणों से कुछ कॉलोनियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, तो ऐसी कमज़ोर कॉलोनियों को हम आपस में एक साथ मिला सकते हैं और इस तरह से इसी मौसम में किसी ऐसे बॉक्स में, किसी ऐसे परिवार में यदि अगर पुरानी या एग्जॉस्टेड क्वीन हनी बी हो, जिसकी अंडे देने की क्षमता कम हो गई हो या वो गुणवत्तापूर्ण अंडे नहीं दे रही, तो ऐसे क्वीन को हम रिमूव भी कर सकते हैं और नए क्वीन हनी बी के उत्पादन हेतु हम तैयारी करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ सेल स्टार्टर, सेल बिल्डर कॉलोनी फॉर क्वीन रियरिंग, जैसा हमने पहले बताया आपको, नई क्वीन हनी बी के उत्पादन के लिए हम उसके या तो वहाँ पे उसको एक कंडीशंस क्रिएट देंगे कि जिससे वर्कर या श्रमिक मधुमक्खी वहाँ पे खुद ही फोर्स होकर करके क्वींस हनी बी बनाने के लिए सेल का उत्पादन करें, या हम कृत्रिम ढंग से क्वीन हनी बी बनाने का कप सेल वहाँ पे पेस्ट कर करके और हम उनको इनकरेज कर सकते हैं नई क्वीन बी बनाने के लिए। पुनः क्योंकि यह महीना हमारा ब्रीडिंग पीरियड कहलाता है, तो इस महीने में यदि अगर कोई मधुमक्खी पालक भाई बहुत ज़्यादा मात्रा में मधुमक्खी बक्सों की संख्या बढ़ा करके बिक्री का काम करना चाहते हैं, तो ऐसे में उनके लिए वो कोई भी एक जो प्रोडक्टिव कॉलोनी हो जिसमें अच्छे या स्वस्थ वर्कर हनी बीज हो, उनका सिलेक्शन ब्रीडिंग पर्पज से कर सकते हैं। नेक्स्ट, टाइमली एक्सट्रैक्शन ऑफ हनी फ्रॉम सुपर फ्रेम्स। यदि अगर हम समय से शहद का सुपर फ्रेम से निष्कासन करते रहेंगे, तो ऐसे में हम पुनः वर्कर बी को काम करने की क्षमता को और बढ़ावा दे रहे हैं, तो हम शहद उत्पादन को बढ़ावा देते हैं।
और इसके साथ ही साथ नियमित रूप से खाली सेल्स मिलने से रानी मधुमक्खी वहाँ पे निरंतर अंडे देकर ब्रूड रियरिंग के काम को कंटिन्यू करती रहेगी। मेंटेनेंस ऑफ कॉलोनी ड्यूरिंग फ्लो सीजन। मेंटेनेंस, हमें जो हमारा हनी फ्लो सीजन है उस समय हमें कॉलोनी को मेंटेन करते रहना है। यदि अगर वहाँ पे डिवीज़न की ज़रूरत पड़ती है, उनकी संख्या यदि अगर बक्से के बाहर लटकती हुई मिलती है, ऐसे में हमें ये समझना है कि हमें इसका विभाजन कर देना है और पुनः इससे एक और बक्सा बना लेना है। तो इस चैप्टर के बाद में, इस सीजनल मैनेजमेंट के बाद में अगले चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम दो कमज़ोर बक्सों को, परिवारों को मिलाते हैं और किसी मजबूत परिवार से हम उससे किस तरह से दो परिवार, दो मधुमक्खी बक्से तैयार कर सकते हैं या 3 बना सकते हैं। इस तरह से इसी सीज़न में हमको रेगुलर जो है कॉलोनी का इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए कि यदि अगर वहाँ पे कोई सुपर सीजर क्वीन सेल बना, मीन्स if any super Swisher queen cell have been formed, it means just after completion of the pupal period, when new queen honeybee will emerge out, will go for the mating purpose in the air. So in this situation, prior completion of the pupal period, we should take care of them. Otherwise, at the time of nuptial flight, it may be the queen bee along with some of the worker bees have left the colony. खास कर करके इस मौसम में ब्रीडिंग सीजन जाना जाता है, यदि अगर बक्से में फ्रेम में सुपर स्वीजर क्वीन सेल बन रहा है तो हमें उसके प्यूपल पीरियड का ध्यान रखना चाहिए कि प्यूपा बनने के कुछ ही दिनों के बाद में उसमें से नई रानी मधुमक्खी निकलेगी और वो अगले विदिन 3 डेज़ में वो मैटिंग के लिए हवा में उड़ान भरेगी और वो कुछ श्रमिक मधुमक्खियों के साथ उड़ान भरेगी। तो ऐसे में हमें ध्यान रखना है कि वो वापस आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस अगर हम स्प्रिंग सीज़न में ध्यान रखें तो बड़े आसानी के साथ बड़ा हेल्दी पॉपुलेशन मेंटेन कर सकते हैं और बहुत अच्छी मात्रा में शहद भी हम प्राप्त कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द सेकेंड इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट ड्यूरिंग समर सीजन। दिस समर सीजन in case of the beekeeping sector, it is known as between the mid of April to the June। मधुमक्खी पालन क्षेत्र में समर सीजन की अगर हम बात करें तो अप्रैल के मध्य से लेकर के जून तक जाना जाता है। ड्यूरिंग दिस सीजन द एक्टिविटीज ऑफ bees are normal due to simultaneous increase in temperature. Therefore, the underlying special care should be taken to maintain the working tempo of the colonies so as to exploit the main honey flow. During this season, if we talk in the Indian context, the scarcity of the food started. So in these cases, and due to the increase in the temperature day by day, the activities of the worker bees, particularly scouts bees or searcher bees, get down due to resultant means collection of the pollen nectar will get down. यदि अगर हम इस समर सीज़न की बात करें
इस समर सीजन में जहाँ एक तरफ दिन प्रतिदिन टेम्परेचर बढ़ता जाता है, वहीं दूसरी तरफ टेम्परेचर बढ़ने की वजह से प्रकृति में जो फ्लोरा है, फूल वाले पौधे हैं, उनमें पॉलन और नेक्टर की मात्रा भी कम होती जाती है। इन सब कारणों से जो हमारी फौजी मधुमक्खियाँ, स्काउट बीज हैं या सर्चर बीज हैं, गैदरर बीज हैं, उनकी जो एक्टिविटी है, क्रियाविधि, वो डाउन हो जाती है और इस तरह से कलेक्शन कम हो जाता है। ड्यू टू डिक्रीजिंग रेट इन एक्टिविटी ऑफ द बीज ड्यूरिंग समर सीजन, collection of the pollen and nectar get down. Due to this reason, due to irregular supply or scarcity of the food material, particularly pollen and nectar inside the colony, queen bee felt that the scarcity of the food material, then the laying capacity, egg laying capacity of the queen bee will get down. इस तरह से भरपूर मात्रा में पराग, पॉलन और नेक्टर कॉलोनी में सप्लाई नहीं होने की वजह से रानी मधुमक्खी ये समझती है कि यहाँ पे भोजन का अभाव है और इस वजह से वो अंडे देना कम कर देती है और उसके अंडे देने कम कर देने की प्रवृत्ति से कुछ ही दिनों में हनी बी की जो पॉपुलेशन, वर्कर बी की जो पॉपुलेशन है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है एंड द अल्टीमेटली द पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी विल गेट डाउन डे बाई डे एट द एंड ऑफ द समर्स। इस तरह से हमें इससे बचाने के लिए ऐसे में मधुमक्खी परिवार को स्वस्थ बनाए रखने, ताकि हम आगे जा कर के उनसे अत्यधिक लाभ अर्जित कर सकें, हमें कुछ प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। जैसे सबसे पहला, वी शुड प्रोवाइड फ्रेश वाटर एंड मॉइस्ट गनी बैग इफ रिक्वायर्स ड्यूरिंग समर सीजन। मीन्स इसका मतलब हुआ कि हमें गर्मी के महीनों में फ्रेश वाटर प्रोवाइड करना चाहिए। यदि अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है तो हमें भीगा हुआ गनी बैग भी यूज करना चाहिए यदि अगर ज़रूरत है। पानी देने के लिए हम सभी जानते हैं मधुमक्खी बक्से को बी स्टैंड पर रखते हैं। बी स्टैंड जो लकड़ी का, लोहे का या बम्बू का बना हो सकता है। उसके जो पाँव होते हैं, उसके जो लेग होते हैं, उनके लेग में यदि अगर नीचे में मिट्टी के बने हुए अगर कटोरे या प्लेट्स अगर रख करके उसमें पानी भर दें तो ना सिर्फ हम स्वच्छ पानी की उपलब्धता उनके लिए उपलब्ध करा सकेंगे, बल्कि हम चींटियों से होने वाले आक्रमण को भी कम कर सकते हैं। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, colonies should be shifted under shady places along with the proper spacing for their management. इस मौसम में कॉलोनी को हमें, मधुमक्खी बक्से को छायादार स्थान पे स्थानांतरित कर देना चाहिए और निश्चित रूप से एक बक्से से और दूसरे बक्से के बीच में जो स्टैंडर्ड दूरी होनी चाहिए उस दूरी पे करना चाहिए। जैसे बक्से से बक्से की दूरी 3 फीट कम से कम रखनी चाहिए। वहीं यदि अगर हम लाइन की बात करें या रो की बात करें, एक रो से दूसरे रो की दूरी 10 फीट की रखनी चाहिए, जिससे ना सिर्फ मधुमक्खियों को बल्कि हमें काम करने में भी सुविधा मिलेगी। Adequate space should be made available in the colony for brood rearing and later on for storing nectar and honey. जैसा
ये हमने आपको स्प्रिंग सीजन में भी बताया कि यदि अगर हम नियमित रूप से यदि अगर वहाँ पे शहद का उत्पादन किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा, बनाया जा रहा है, तो हमें शहद निकाल करके छत्ते को खाली रखते रहना चाहिए ताकि उसमें ब्रूड रियरिंग का भी काम हो सके। टाइमली एक्सट्रैक्शन ऑफ हनी फ्रॉम सुपर फ्रेम। वीक कॉलोनीज शुड बी यूनाइटेड विद द स्ट्रांग वन। इस गर्मी के महीने में निश्चित रूप से दिन प्रतिदिन कुछ परिवार कमज़ोर हो ही जाते हैं। ऐसे में उस कमज़ोर मधुमक्खी बक्सों को आपस में मिला कर करके एक मजबूत परिवार बना देना चाहिए। कॉलोनी इंस्पेक्शन फॉर ब्रूड रियरिंग एक्टिविटीज, लेइंग क्वीन एंड द बी स्ट्रेंथ ड्यूरिंग वार्म वेदर। बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाने की वजह से हमें रानी मधुमक्खी का नियमित देखभाल करना चाहिए कि वो नियमित रूप से अंडे दे रही है कि नहीं, ब्रूड का उत्पादन हो रहा है कि नहीं, ब्रूड पाले जा रहे हैं कि नहीं। यदि अगर ऐसे में बक्से के अंदर ज़्यादा गर्मी बढ़ गई हो तो हमें जूट का भीगा हुआ बोरा हम उसको फ्रेम के जस्ट ऊपर लगाते हुए साइड से नीचे लटका देंगे ताकि उनके बक्से का तापमान उनके बच्चों के पालन पोषण के लिए मेंटेन किया जा सके। लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, मधुमक्खियां साधारणतया 28 से 32 डिग्री सेल्सियस पर इनकी जो अच्छी ग्रोथ होती है, इनका डेवलपमेंट होता है, इनकी क्रियाविधि जो बहुत ही अच्छी होती है, सब के लिए एवरेज अगर मिला के देखें तो 28 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान बहुत ही अनुकूल होता है। कहीं कहीं यह तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक भी क्षम होता है। लेकिन यदि अगर उससे ज़्यादा होता है तो हमें समुचित प्रबंधन करना चाहिए। क्लीनिंग ऑफ बॉटम बोर्ड में रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ द पेस्ट एंड डिजीज अटैक। नियमित रूप से हमें बक्से के बॉटम बोर्ड की सफाई करते रहना चाहिए ताकि हम उसमें पलने पोसने वाले इंसेक्ट्स या अदर ऑर्गेनिज्म या पैथोजेंस को कम कर सकें। मैनेजमेंट ड्यूरिंग मानसून सीजन। दिस सीजन comes between end of the June and will go up to the September. Means, as we know that end of the June and September is monsoon, means rainy season. This season is virtually unfavorable for the honeybees. During this period, attack of different pests, diseases resulted the colony strength decline. Besides this, the food sources during this season are also scanty. Starving colonies may even abscond. Thus, to overcome these adverse conditions, the following management practices should be taken during this season. This monsoon season is known as the unfavorable, means during this season the population of bees get always down day by day due to the regular attack of the different pests, likewise the wax moth, ants, wasps, bee mites. And of course, some of the diseases, particularly protozoan disease and bacterial diseases, and due to the scarcity of the food sources, particularly pollen and nectars, यदि अगर हम इस
मानसून सीजन या बरसात के सीज़न की बात करें, ये अनफेवरेबल जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस सीज़न में बहुत सारे अबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेसेस मधुमक्खी की पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। जैसे सबसे पहला उसमें भोजन की कमी, दूसरा टेम्परेचर का बढ़ जाना, तीसरा विभिन्न प्रकार के पेस्ट का अटैक होना, इन सब के साथ ही साथ कई प्रकार की डिजीज़ेज़ का अटैक, डिजीज़ेज़ का हनीबी कॉलोनी को नुकसान पहुंचाना। तो इन सब कारणों से कभी कभी मधुमक्खियाँ अपनी कॉलोनी को भी छोड़ के उड़ जाती हैं, जिसको हम एब्सकॉन्डिंग भी कहते हैं। तो इनके नियमित रूप से प्रबंधन के लिए कुछ प्रैक्टिस, कुछ ऑपरेशन, कुछ प्रबंधन तकनीकी हमें अपनाना चाहिए, जो इस प्रकार है। We should provide fresh water, well shading and proper space for their well movement। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मधुमक्खी परिवार में मधुमक्खियों के लिए स्वच्छ ताज़ा पानी की व्यवस्था करें, उनको मिले। हम निश्चित रूप से छायादार स्थान उनको उपलब्ध कराएं और उनके प्रॉपर मूवमेंट के लिए जो स्टैंडर्डाइज जो दूरी है उसको हमें मेंटेन करना चाहिए। क्लीनिंग अ बॉटम बोर्ड विदाउट डिस्टर्बिंग द कॉलोनीज। As we know that honeybees are only the organism on this earth known as the air conditioner animals, because of during summer season they maintain the colony temperature with the help of their wings. With the help of these wings they fan and maintain the temperature. During winter season, with the help of antenna, rubbing of their antenna, they maintain the colony temperature hot. So during rainy season and summer season, without disturbing the bees, we should always clean out the bottom board to avoid the infestation of pest. We avoid the regular rearing of the pest pathogens, pest and pathogens। हमें गर्मी और बरसात के महीनों में मधुमक्खी बक्से को, मधुमक्खी परिवार को बिना डिस्टर्ब किए हुए, कम से कम बिना डिस्टर्ब किए हुए यदि अगर नियमित सफाई करते रहें तो इससे हम उनमें पलने पोसने वाले बहुत सारे कीड़े मकोड़ों या पेस्ट को, माइट को या कारकों को बहुत हद तक हम दूर कर सकते हैं। ड्यूरिंग दिस सीजन we should remove old black combs or infested combs with wax moth or empty combs to avoid the infestation of the wax moth। इस सीज़न में, इस मौसम में हमें ध्यान रखना चाहिए कि बक्से में यदि अगर खाली छत्ते पड़े हैं तो ऐसे खाली छत्तों को निकाल करके हमें स्टोर कर देना है, या अगर वो बहुत पुराने हो चुके हैं तो उन्हें हमें डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। Of course, we should regularly inspect the honeybee colony whether the any attack or infestation of the wasps or ants, wasps and ants at the apiary or inside the honeybee colonies or not। हमें इसी मौसम में उसके समुदाय का पाया जाने वाला दूसरे विभिन्न प्रकार की प्रजाति वास्प और आंट्स, वो हमारे मौनालय पे, अपियरी पे या हमारे हनीबी के आसपास में कहीं अगर उसको नुकसान पहुंचाते हुए हमें ऑब्जर्व करना चाहिए और उसके प्रबंधन की तकनीकी अपनाना चाहिए। We should regularly inspect the colony to check the incidence of the diseases।
इफ़ एनी। हमें रेगुलरली मधुमक्खी बक्से को, परिवार को देखते रहना चाहिए, दोनों, चाहे वो एडल्ट्स हो और चाहे वो ब्रूड्स हो। इनमें कोई किसी भी प्रकार की बीमारी का कहीं शुरुआत तो नहीं हुआ है। एंड ऑफ कोर्स रेनी सीजन में निरंतर बारिश होने की वजह से या टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से पर्याप्त मात्रा में जो फ्लोरल या फ्लावर बियरिंग प्लांट्स हैं वहाँ पे नेक्टर का उत्पादन बहुत ही कम हो पाने के कारण या कलेक्शन कम हो पाने के कारण, रेगुलर बारिश होने के कारण हमें कृत्रिम भोजन यानी कि पॉलन और नेक्टर का सब्स्टिट्यूट, पॉलन नेक्टर या हनी का सब्स्टिट्यूट बना के देने की आवश्यकता होती है। सो इन प्लेस ऑफ द nectars we can provide artificial feeding of sugar syrup in the ratio of 1:2 ratio, means 1 is sugar and 2 is the water, means 50. If you are mixing the 50-gram water in the 100 ml, and we should boil it and mix it and get it cold, and after 2-3 hours it should be provided in the honeybee colonies at 3 to 4 day intervals. हमें मधुमक्खियों की संख्या को बनाए रखने के लिए शहद की उपलब्धता नहीं है, पुष्परस की कमी है, नेक्टर की कमी है, तो ऐसे में हम शुगर सिरप, कृत्रिम ढंग से शुगर सिरप बना करके उनको उपलब्ध करा जा सकते हैं। शुगर सिरप बनाने के लिए 1 से 2 के अनुपात में चीनी और पानी की मात्रा को मिक्स करते हैं, उसको कम से कम आधे घंटे तक धीमी आंच में हम पकाते हैं और इस तरह से उसको 2-3 घंटे बाद कम से कम वह जो नॉर्मल हो जाए टेम्परेचर पे, ठंडा हो जाए, तब उसे हम फीडिंग कराते हैं। और फीडिंग जो है अगर हम बक्से में अक्सर शाम के समय देते हैं और इस तरह से एक बार बनाया हुआ कृत्रिम भोजन 3 से 4 दिनों तक चलेगा और 3 से 4 दिनों के अंतराल पर दोबारा दे सकते हैं। And in place of the pollen substitute, we can prepare synthetic pollen by mixing of the soybean flour 25 gram, pollen 15 gram, yeast powder 10 gram, milk powder 5 gram, honey or sugar 43 gram, along with the glycerin 2 gram. इस तरह से हम पॉलन का भी सब्स्टिट्यूट बना सकते हैं, जिसको हम सिंथेटिक पॉलन बोलते हैं। 100 ग्राम हमें सिंथेटिक पॉलन बनाने के लिए सोयाबीन आटा 25 ग्राम, पराग 15 ग्राम, ईस्ट पाउडर 10 ग्राम, मिल्क पाउडर 5 ग्राम, हनी या शुगर दोनों में से जो अवेलेबल हो 43 ग्राम और ग्लिसरीन 2 ग्राम मात्रा को हम लेंगे। एक शीशे की प्लेट लें या स्टील मेड, शीशे के प्लेट ज़्यादा उपयुक्त होती है। ऐसे में ग्लिसरीन को छोड़ करके बाकी सारे जो तत्व यहाँ मेंशन किए गए उनको हम आपस में एक साथ मिला लेंगे। मिलाने के तत्पश्चात ग्लिसरीन को भी उसमें डाल करके और पूरी तरह से एक पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, मिला करके और हम प्लेट से मधुमक्खी बक्से में नीचे बॉटम बोर्ड पर हम देते हैं फीडिंग के लिए। नाउ कमिंग टू द मैनेजमेंट ड्यूरिंग autumn and winter season, as we know that the October month in our country is known as the autumn season, and somewhere it is extended to the mid of the November. However, from the mid of the November to up to January, particularly known as the winter season. So during this season, the critical brood rearing starts in autumn and winter seasons because of the congenial climatic conditions and the availability of the bee flora. The bees remain busy to continue their hives as well as in field activities. As the winter advances, the conditions become little adverse and foraging activity is also curtailed. So during autumn season, when we placed
a honeybee colony at anywhere, wherever the floral sources are available, due to the presence of the congenial environment climatic condition, particularly in the month of October, bees got affected. So we should take care of them. And then again, if we talk about the winter season, so in the in the mid of the November to the January, and we can say mid of the February, we should take care of the honeybee colonies against cold waves. जहाँ तक अगर हम ऑटम और विंटर सीजन की बात करें, ये ऑटम और विंटर सीजन अक्टूबर से लेकर के जनवरी तक रहता है हमारे भारत देश में। एक एवरेज के तौर पे अगर हम देखें तो खास करके जो अक्टूबर का मंथ है, लगभग 15 नवंबर तक जब हम ठंड में प्रवेश करते हैं, बड़ा ही कंजेलियल क्लाइमेटिक कंडीशंस होता है, जैसे कि टेम्परेचर में गिरावट आती है। और ये टेम्परेचर में गिरावट आने की वजह से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इंक्लूडिंग हनी बीज, सभी की फिजियोलॉजी या सभी ऑर्गेनिज्म इससे अफेक्टेड होते हैं। और ठीक इसी तरह से विंटर में अगर हम बात करें तो विंटर सीजन में टेम्परेचर ज़्यादा डाउन हो जाने की वजह से ठंडी हवाओं के थपेड़ों से इनकी जो क्रियाविधि है, एक्टिविटीज़ है, वो भी डाउन हो जाती है और उससे भी अफेक्टेड होती है। इससे बचने के लिए या इनके प्रभाव को, ऑटम और विंटर सीजन के प्रभाव को मधुमक्खी परिवारों में कम करने के लिए कुछ ज़रूरी प्रैक्टिसेस हैं, मैनेजमेंट प्रबंधन तकनीकी हैं, जिनको हम अपना सकते हैं। तो वी शुड रेगुलरली इंस्पेक्ट honeybee colony, whether building up of worker population in colony vis-a-vis performance of queen is going on or not। हमें नियमित रूप से ऑटम सीजन या विंटर सीजन में वीकली इंटरवल पे देखभाल करते रहना चाहिए कि जो वर्कर की पॉपुलेशन है, जो समर से लेकर के मानसून सीजन में दिन प्रतिदिन धीरे धीरे डाउन हो गई थी, क्या वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है या कांस्टेंट है या और डाउन हो रही है। यदि अगर आगे बढ़ रही है अच्छी बात है, कांस्टेंट है तो सावधानी बरतने की ज़रूरत है, थोड़ी प्लेस चेंज करने की ज़रूरत है, या जो वहाँ पे समस्या उसका समाधान तुरंत करने की ज़रूरत है। इसी तरह से हमें क्वीन मधुमक्खी, क्वीन हनी बी का भी उसके बिहेवियर को, उसके परफॉर्मेंस को, या उसके अंडे देने की क्षमता में वृद्धि हुई है या नहीं हुई है, वो पूरे बक्से का भ्रमण कर रही है कि नहीं, विजिट कर रही है कि नहीं, तो देखने की ज़रूरत है। ऐसे में विंटर सीजन में लाइकवाइज ह्यूमन बीइंग वी शुड शिफ्ट beehives, bee boxes in the area where sunlight or natural light at least present, so that we can maintain the at least favorable temperature inside the colony। हमें ठंड के महीनों में या विंटर सीजन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो मधुमक्खी के बक्से हैं, हाइव्स हैं, उनको हमें किसी ऐसे स्थान पर स्थानांतरित करना चाहिए जहाँ पे एटलीस्ट सूरज की रोशनी मिले या प्राकृतिक प्रकाश मिले, ताकि वो अपने बक्से का तापमान मेंटेन कर सके। मेंटेनेंस ऑफ कॉलोनीज विथ लीस्ट डिस्टर्बेंस टू मेंटेन विंटर क्लस्टर। हमें उनकी कॉलोनीज को रेगुलर मेंटेन करते रहना चाहिए, और ये मेंटेनेंस जितना कम से कम हम उनको डिस्टर्ब करें, बिल्कुल उनको कम से कम डिस्टर्ब करने के लिए
बक्से को जो खोलने का जो टाइम होता है, जब भी वो हमें ठंड के महीनों में जिस दिन खुली धूप मिले, हमें उस दिन को चूज करना चाहिए, ना कि जिस दिन बहुत ज़्यादा अगर ठंड पड़ रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो ऐसे मौसम में करना चाहिए। इसके अलावा मेंटेनेंस का मतलब ये हुआ, कभी कभी बक्से में उसके चारों तरफ पुराना हो जाने की वजह से, सड़ जाने की वजह से, या शत्रुओं के अटैक होने की वजह से, या गर्मियों में लकड़ी के बने बक्से सूख जाने की वजह से जो उनके जॉइंट पार्ट हैं या उनके कॉर्नर में या उनके एंट्रेंस में जो वृद्धि हो गई रहती है, उस रास्ते से ठंडी हवाएं ज़्यादा मिलती हैं। तो ऐसे में इस तरह से अगर कहीं कोई क्रैक्स और क्रिवाइसेस या स्पेस ज़्यादा अगर बन गया है उनके मुख्य दरवाजे को छोड़ करके, तो उसे हमें बंद कर देना चाहिए। गीली मिट्टी लगा कर करके हमें बंद कर देना चाहिए। We should also use gunny bags for the protection from the chilly winds. निश्चित रूप से हमने जो आपको एक एवरेज उनके बेटर ग्रोथ, डेवलपमेंट, ब्रीडिंग, उनकी एक्टिविटी को बनाए रखने के लिए, पॉलन नेक्टर्स का कलेक्शन करने के लिए, जिससे वो कम प्रभावित होते हैं, उस टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए, ठंड के महीनों में ठंडी हवा के थपेड़ों से बचने के लिए हमें गनी बैग का, सूखे गनी बैग का, मॉइस्ट नहीं, सूखे गनी बैग का यूज करना चाहिए, ताकि हम उनको ठंड से बचा सकें। इस तरह से ये सीजन वाइज मधुमक्खी परिवार में मधुमक्खी परिवारों की देखभाल करते हुए हम उनके सालों भर उनकी स्वस्थ पॉपुलेशन को मेंटेन कर सकते हैं।